رات بھر شہر کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش برسی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شملہ پہاڑی، وحدت روڈ، اقبال ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، اچھرا میں بارش برسی ہے۔ بند روڈ، گلشن راوی، سبزہ زار میں بھی ابر رحمت برسی ہے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برستے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی غائب رہی۔ بارشوں اور آندھی کا سلسلہ 4 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برستے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی غائب رہی۔ بارشوں اور آندھی کا سلسلہ 4 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ بند روڈ، گلشن راوی، سبزہ زار میں ابر رحمت برس پڑی ہے اور بارش کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ رات بھر آندھی اور بارش کے بعد شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سے ہی مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شاہ شہزاد سے۔ شاہ سے بتائیے گا۔ جی بالکل، رات بھر آندھی اور طوفان کے بعد شہر کا مطلع ابھی بھی ابر آلود ہے۔ آسمان پر بادلوں کا راج برقرار ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے مختلف علاقہ جات میں رات کے پہر کافی بارش ہوئی، تیز آندھی اور طوفان بھی تھا، جس کے بعد درجہ حرارت جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لاہور کا بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں پھر سے بارش کا امکان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز تک جو ہے وہ آسمان پر بادلوں کا راج برقرار رہے گا، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کر لی جاتی ہے تو وہ 73% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں واضح کمی ہوئی ہے، جبکہ جو شہری ہیں رات کے وقت ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوا، کیونکہ آندھی اور طوفان کے باعث جو ہے وہ شہر میں بجلی کی بندش بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، برائلر گوشت کے دام کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 560 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ صافی گوشت 640 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 روپیہ اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 246 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7260 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں برائلر گوشت کے دام کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 560 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ صافی گوشت 640 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 1 روپے اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 246 روپے ہو گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7260 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ صافی گوشت 640 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 روپیہ اضافے سے انڈوں کی فی درجن قیمت 246 روپے ہو گئی ہے۔ راوی روڈ پر دکان میں سلنڈر دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص جان کی بازی ہار گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ سلنڈر پھٹنے سے متاثرہ عدنان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رات گئے دم توڑ گیا اور جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ دیگر 10 زخمیوں کو اسپتال میں علاج جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے پنجاب بھر کے اسپتالوں کی آؤٹ ڈور سروسز کے بعد انڈور سروسز بند کرنے کی دھمکی۔ الائنس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کو انتظامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت نے اس روش کو ترک نہ کیا تو سوموار سے ہم وارڈز میں داخل مریضوں کا چیک اپ بھی بند کر دیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
पुलिस के लाठी चार्ज और जबरदस्ती धरना खत्म करवाने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से 11वें रोज भी आउटडोर सर्विसेज और जहां मौतलियां की गईं वहां इंडोर सर्विसेज भी बंद रहीं। वाईडीए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब थंड और सरपरस्त डॉक्टर सलमान हसीब ने जनरल अस्पताल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजाना की बुनियाद पर हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। हमें पुलिस के जरिए डराया जा रहा है, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत भी सुन ले, हम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़े हैं और हर इमरजेंसी के लिए तैयार होंगे। जो इस टाइम मुल्क में एक जंग का एक खदशा है, जो कि भारत इंडिया ये समझ ले कि हम कोई कमज़ोर नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला अपनी पाक फौज, अपनी वफाकी हुकूमत के साथ ये सफ़ेद वर्दी में हम सर फहरिस्त होंगे। दर्जनों लोगों को जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको सिर्फ महज इसलिए नौकरियों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो निजकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम मजबूर हो गए हैं कि हम आउटडोर के साथ साथ इंडोर से अपनी सर्विसेज विड्रॉ करा लें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स की मौतलियां ना रुकी तो सोमवार से हम अस्पतालों के इंडोर सर्विसेज बंद कर देंगे और वार्ड्स में दाखिल मरीजों को भी चेक नहीं किया जाएगा। यंग नर्सेज एसोसिएशन पंजाब की सदर फौजिया आजम ने कहा कि मुतालिबात पूरे कराने के लिए हमारे मुज़ाकरात वज़ीर आला मरियम नवाज से करवाए जाएं। थोड़ा सा जो है ना नज़रसानी करें अपने फैसलों पे, थोड़ी सी नज़रसानी करें जो हमारे साथ हो रहा है। हम भी इन्हीं के पंजाब के लोग हैं, हम ही इन्हीं के बंदे हैं, हम भी मरियम की बहनें हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है इस पे थोड़ा सा नज़रसानी करें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मौतलियां रोजाना की बुनियाद पर तेजी से की जा रही हैं। यही वजह है कि महकमा सेहत ने नए डॉक्टर्स भर्ती करने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है ताकि आउटडोर और इंडोर सर्विसेज को चलाया जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी का मामला ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने अस्पतालों की ओपीडीज़ के साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी हैं। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया है। सूबा भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 11वें रोज़ भी बंद हैं। जिना अस्पताल का आउटडोर मजदूर डे की वजह से मुकम्मल बंद, मरीजों का रश न होने के बराबर रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। लाहौर समेत पंजाब भर के BHUs की निजकारी का मामला ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के अस्पतालों की OPDs के साथ साथ इंडोर सर्विसेज की मुअत्तली जारी है। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स भी जुज़वी बंद हैं। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 11 रोज से बंद। 5 लाख से जायद मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर में हड़ताल जारी है। कुछ अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से आउटडोर चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम दूर दराज से आए मरीज बगैर इलाज मुआवजा करवाए घरों को वापस जाने पर मजबूर हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि अस्पतालों की निजकारी रोकने के ऑर्डर्स तक अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स के जरिए OPDs चलाई जा रही हैं। ऑपरेशन थिएटर्स भी फाल हैं। यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरीजों के इलाज में खलल डालने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नए थाने कायम कर दिए हैं। पंजाब के 36 अजला में 38 नए थाने बनाए गए हैं। लाहौर में 3 जबकि दीगर अजला में CCD का 1 थाना कायम किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रसा। पंजाब भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नए थानों का कयाम महकमा दाखिला पंजाब ने 36 अजला में 38 नए थाने कायम कर दिए। लाहौर में 3 जबकि दीगर अजला में 1-1 थाना बनाया गया है। नए थानों के कयाम से जराइम की रोकथाम और क़याम अमन में मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को संगीन जराइम की सरगोबी के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत कानून नाफिज करने वाले अदारों को हर मुमकिन मदद और जदीद आलात फराहम कर रही है। पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी से अमन व अमान का कयाम और अवामी एतमाद बहाल होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नए थानों के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में हर जिला के थाने की हदूद का वाज़ेह तयन किया गया है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महकमा दाखिला पंजाब का तालीम दोस्त मिसाली इकदाम। पंजाब की जेलों में स्मार्ट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का आगाज़। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर में स्मार्ट लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। कैदियों को उनके बैरक्स के अंदर किताबें और शेल्फ मुहैया किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब की तमाम 44 जेलों में बैरिक्स के अंदर स्मार्ट लाइब्रेरीज कायम कर दी गईं। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल के मुताबिक जेलों में 1 लाख किताबें पहुंचाई गई हैं। कैदियों की तरबियत के लिए कुतुब बीनी का साजगार माहौल फराहम किया है। हर जेल में माहाना 500 नई किताबों का इजाफा किया जाएगा। नूरुल अमीन मैंगल ने बताया कि माहाना बुनियादों पर हर बैरिक की किताबें दूसरी बैरिक से तब्दील की जाएंगी। स्मार्ट लाइब्रेरीज में अखलाकियात, तारीख, इस्लाही सबक आमूज, अदब, किरदार साजी और इस्लाम बारे किताबें रखी गई हैं। हर तालीम याफ्ता कैदी 10 असीरान को किताब का खुलासा बयान करेगा। बैरिक इंचार्ज किताबों की हिफाजत और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला प्रिजन आसिम रजा, IG जेल मियां फारूक नजीर, DIG जेल लाहौर रीजन नवीद राउफ, जेल सुपरिटेंडेंट जहीर अहमद बिर्क भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ, अवाम की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कोई नई कीमतों पर मुतमिन दिखाई दिया तो किसी ने इस मामूली रिलीफ को नाकाफ़ी करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 2 रुपये कमी से 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। किसी ने मजीद रिलीफ का मुतालबा किया तो कोई नई कीमतों पर मुतमिन दिखाई दिया। सर ये जो है 2 रुपये कमी, ये तो कोई मायने नहीं रखती ना हुकूमत को, ये कोई रिलीफ नहीं है। कम अज़ कम 150-100 पे पेट्रोल की कीमत को आना चाहिए। ये माइनर सी कीमत है, ये कोई मायने नहीं रखती। सर रिलीफ बेसिकली अगर आप देखते हैं तो एक किसी साइड से कम कर रहे हैं, एक साइड से बढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एवरेज वहीं पे आ जाती है। कम से कम पेट्रोल कोई 150 रुपये लीटर हो, फिर हमें कोई मुनाफा भी हो, हमारी बचत भी हो। बाज़ शहरियों ने कहा कि हुकूमत अगर किसी एक चीज की कीमत कम करती है तो दूसरी चीज की कीमत कई गुना बढ़ा दी जाती है। कैमरामैन बाबर के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। LPG की कीमत में भी मामूली कमी कर दी गई है। अवाम ने LPG की कीमत में 3 रुपये की कमी को मुस्तरद कर दिया। मार्केट में LPG मुकर्रर कीमत पर कहीं दस्तयाब नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। की कीमत में भी मामूली रिलीफ। 3 रुपये 20 पैसे कमी से LPG की नई कीमत 245 रुपये 13 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने 2025 के लिए LPG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 37 रुपये सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर के दाम 2892 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मार्केट में LPG मनमाने निरखों पर ही फरोख्त की जा रही है। मार्केट में LPG 300 रुपये फी किलो तक बेची जा रही है। रियों का LPG महंगी मिलने का शिकवा बरकरार। कहते हैं ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में कमी नाकाफी है। 3 रुपये, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने सारे कम किए पैसे, 3 रुपये कम कर दिए उन्होंने। और भाई जब बढ़ती है तो 30 रुपये बढ़ती है, और जब कम करते हैं 3 रुपये कम करते हैं। मेरे ख्याल में 100 या 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम नहीं हुई भाई, बल्कि बढ़ गई है 3-4 रुपये। पहले मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, हम दिलवाते रहते गैस, पहले 70 रुपये थी, 80 रुपये थी, लेकिन अब वो मजीद 300 रुपये हो गई। शहरियों का मजीद कहना है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सरकारी रेट्स सिर्फ कागजों तक ही महदूद हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। वासा पंजाब की गवर्निंग बॉडी में मजीद अरकान का इजाफा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद वासा पंजाब की गवर्निंग बॉडी में 4 टेक्निकल अरकान भी 3 साल के लिए नामजद किए गए हैं। वाटर सप्लाई एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अतीक तारिक और सैनिटेशन कैटेगरी में इंजीनियर इनवारुल हक बतौर मेंबर नामजद। हाइड्रोलॉजी कैटेगरी में हबीबुर रहमान मुगल, लॉ कैटेगरी में सलमान अहमद मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अरकान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के NA 130 के लिए तरक्याती पैकेज। पार्क्स को अपग्रेड करने के लिए 3 पैकेज बना दिए गए। गलियां दोबारा पक्की होंगी, टफ टाइल्स भी लगेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जैनुल आबिदीन। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के के लिए बड़ा पैकेज। NA 130 की गलियां लशपश और पार्क्स भी अपग्रेड होंगे। 3 मुख्तलिफ पैकेजेस में पार्क्स की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। ग्रुप 1 में 3 करोड़ 82 लाख, ग्रुप 2 में 3 करोड़ 96 लाख रुपए से पार्क्स की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। ग्रुप 3 में 3 करोड़ 56 लाख रुपए पार्क्स की अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे। LDA ने हल्के के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन हल्के में होने वाले तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग करेंगे। मक्का रोड, शीशमहल रोड, शाहजहां रोड की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। रेटिगन रोड, मोहनी रोड, बाबा फरीद रोड की बहाली और अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा। कच्चा रावी रोड, क्रीम पार्क और मुल्हिका आबादियों के लिए भी तरक्याती प्लान तैयार कर लिया गया। मशरकी जोन के नाम पर NA 130 में तरक्याती काम का पैकेज बना लिया। मशरकी जोन पैकेज का काम 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
शौकत खानम फ्लाई ओवर को एक जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वासा की जानिब से बौसीजा सेवरेज लाइन की तब्दीली का काम जारी है। ख़याबान जना से ख़याबान फिरदौसी की जानिब जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर है, ताहम अल्लाहू चौक से वापडा टाउन जाने वाली ट्रैफिक के लिए फ्लाई ओवर खुला है। LDA एवेन्यू 1 और ख़याबान जना से आने वाली की ट्रैफिक को मोड़ा जा रहा है। मुतबादिल रूट के तौर पर नजरिया पाकिस्तान रोड से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश की गई है। वासा इंतज़ामिया का कहना है कि सेवरेज लाइन की तब्दीली का काम 6 माह में मुकम्मल होगा। तामीराती काम के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है।